Hello students, welcome to CBSE Notes. In this channel, with the help of this channel, I am going to provide notes specifically based on CBSE pattern for class from class 9th to class 12th. So starting from class 10th with chapter that is electricity, which is related to physics. This chapter comprises of 12 marks in which you will get near about 6 to 7 marks of numericals and rest of it will be your theory pattern. So let's begin with this chapter. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि इसमें सारे के सारे नोट्स आपको यहीं के यहीं आपको अवेलेबल हो जाएं। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सब कुछ जो है इसके अंदर से ही इस आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स वगैरह साथ के साथ बना सकते हैं इसके अंदर। सो लेट्स बिगिन। तो द फर्स्ट वेरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज़ डिनोटेड बाय q, small q, or somewhere it is small e. So what do you mean by electric charge? So electric charge, so it is a property of matter that causes it to experience a force when placed near other electrically charged objects. What do you mean by this? For example, let's take an example of sodium. So its atomic number is 11. So therefore it has one electron in its outermost shell, that is 281. So one electron is there in its outermost shell, and this makes this atom a very unstable because its outermost shell is not complete. So in order to gain the stability, what it will do? It will try to lose that electron, and once it will lose the electron, the atom will become stable. So you know that in chemistry you study that any atom which loses its electron, it will gain positive charge. Similarly, if we take the example of chlorine, it has 17 atomic number. So its last shell contains 7 electrons. So once it will gain 1 electron, then it will become stable. So once gaining the electron, it will attain negative charge. So charge, so basically it is the internal property of any matter, how it will behave with its surrounding. And we also know that when a positive charge is bring near to a negative charge, they try to attract each other. This is the very basic property of any charges. When two opposite charges try to bring together, they will exert an attractive force on each other. So this is, now let's come again to this definition. What is charge? So it is a property of matter that causes it to experience a force when placed near other electrically charged objects. So similarly, there are various types of charges related to day-to-day things. For example, glass or silk. If you rub glass with silk, then you may notice that the glass will attain a positive charge, whereas silk will attain a negative charge. So it is a property of any matter. अच्छा, अब मैं अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि चार्ज जो है ये डेवलप ही क्यों होता है, ये चार्ज डेवलप क्यों होता है, क्या है जिस वजह से ये चार्ज डेवलप हो। तो होता क्या है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए आप ग्लास है, ग्लास को आप जब रब करते हो तो अब कोई भी चीज़ है किससे बनी है? एटम से बनी है। तो जब आप उसको रब करोगे तो वो जो एटम है वो क्या करेंगे? उस एनर्जी को अब्जॉर्व करेंगे, जो फ्रिक्शनल एनर्जी आपने उस पर क्रिएट की उस एनर्जी को अब्जॉर्व करेंगे। और कोई भी एटम जब एनर्जी अब्जॉर्व करेगा तो सबसे पहले उसको उस एनर्जी को अब्जॉर्व कौन करेगा? उसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चले जाएंगे, उस एटम को छोड़ के चले जाएंगे। तो जैसे उसको छोड़ के जाएंगे तो एटम पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब आपका एटम क्या है? न्यूट्रल है उस केस में। लेकिन जब एक भी इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के चला गया तो अब मेजोरिटी किसकी हो गई? प्रोटॉन की। और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो इसीलिए उस एटम पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसीलिए ग्लास के ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। और इसी तरीके से सिल्क, तो सिल्क की टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसमें मेजोरिटी चार्ज कौन से हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो इसलिए पूरी पूरी सिल्क के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये होते हैं। तो ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते किस एटम पे पॉजिटिव आना चाहिए, किस पे नेगेटिव आना चाहिए। तो ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, और यही चीज़ इस डेफिनेशन में बताई गई है। यही चीज़ जो है इसकी डेफिनेशन में बताई गई है। क्या बताई गई है? कि इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? नाउ, तो इसी तरीके से इसमें और भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कैट स्किन और एबोनाइट का है, फ्लैनल एंड एबोनाइट का है, वुलन क्लॉथ जो फर होती है, और एम्बर का है, ड्राई हेयर और कॉम। तो ड्राई हेयर पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और कॉम पे जो है नेगेटिव चार्ज आता है। तो कभी आपने नोटिस किया होगा जब आप कंघी करते हो बालों में, तो कई बार बाल जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से है, उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली जो चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू होती है चार्ज की, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आता है उसकी जो अमाउंट है। तो चार्ज को हम हमेशा कूलम में डिनोट करते हैं। तो कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनी चार्ज, और वेयर mp is the mass of proton, mn mass of electron, me mass of electron, and mn mass of neutron, mp mass of proton. Now comes to properties of charges. So as I have already told you that like charges repel each other, whereas unlike charges attract each other. So this is the very basic property of any charge. Charge are quantized. It means are charge is an integral multiple. The net charge of an object is integral a multiple of the base unit of an individual charge. For example, if there are n number of charges which are distributed on a TV screen, if there are n number of charges which are distributed on a TV screen, so they are also additive in nature, so you can add them up. So what will be the number of charges? N is the number of charge and E is a charge on a single base unit. So in this case, we base unit will take electron as a base unit. Sorry. So in this we'll take electron as a base unit. तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज एडिटिव होते हैं, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी टीवी स्क्रीन के ऊपर 4 चार्ज पड़े हैं, उसमें से 3 तो प्लस हैं और 1 नेगेटिव में है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 2 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस तो कट जाएगा, क्योंकि चार्ज की स्ट्रेंथ तो सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सबकी स्ट्रेंथ सेम है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच गए 2 पॉजिटिव। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2, और चार्ज होने सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो Q। तो टोटल चार्ज जो है Q इज इक्वल टू N द नंबर ऑफ चार्जेस, जो कि आपका 2 आया है, और इनटू एक चार्ज की वैल्यू कितनी है वो आप लिख दोगे, जैसे हम स्मॉल q से भी डिनोट करते हैं और e से भी डिनोट करते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप निकाल